اور اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے بہت ہی ہر دل عزیز کریڈیبل سینئر ترین صحافی ثاقب بشیر صاحب، اور پچھلے دنوں ان سے متعلق ایک ایسی خبر بھی آئی تھی جس سے نہ صرف پاکستان میں جو ان کو فالو کرتے ہیں لوگ وہ تشویش کا شکار ہو گئے تھے، بلکہ دنیا بھر میں چونکہ ان کے جو بلاگز ہیں، ان کا یوٹیوب چینل، ان کی جو نیوز ہیں وہ فالو کی جاتی ہیں، عدالتی معاملات سے متعلق، سیاسی معاملات سے متعلق جب بھی کریڈیبل خبر کی ضرورت ہوتی ہے تو ہر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ انہی کی جانب، انہی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی جانب توجہ کرتا ہے۔ احمد، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، وقت ضائع کیے بغیر ان کی جانب چلتے ہیں کیونکہ پاکستان میں اس وقت رات کافی ہو چکی ہے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ ثاقب بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم آج جو کچھ ہوا پاکستان میں اس کی جانب آئیں، آپ خیریت سے ہیں، محفوظ ہیں؟ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، بہت زیادہ تشویش ہو رہی تھی جب آپ سے متعلق یہ مطیع اللہ جان جو ہمارے سینئر صحافی ہیں ان کے اور آپ سے متعلق ہم نے یہ خبر سنی تھی کہ آپ کو کچھ لوگوں نے حراست میں لے لیا ہے۔ آئی ڈونٹ نو، کہ میں تو یہ کہنا بھی نہیں چاہتی کہ جو جس طرح سے زیادتی آپ کے ساتھ کی گئی، تو آپ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل خیریت سے ہیں، اور جو کچھ ہوا وہ آپ سنا چکے ہیں، جو واقعات ہوئے۔ لیکن ایک چیز جو میرا خیال میں، ویسے تو جرنلزم جو ہم کر رہے ہیں، ہماری کسی سے کوئی لڑائی ہے، ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں انقلاب آ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ جو ہماری جو لوگوں کی سوچ ہے اس واقعے کے بعد، وہ میں نے ویسے بہت زیادہ فیل کی ہے کہ جتنے بھی لوگ مجھے ملے ہیں وہ کسی بھی شعبے سے ہوں، مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ ملک چھوڑیں اور چلے جائیں کسی اور ملک میں۔ مطلب میں اپنے کوئی قریبی دوستوں اور ان کی بات کر رہا ہوں، تو یہ بہرحال ایک عجیب قسم کی اور وہ کیا کہتے ہیں کہ نا امیدی سی جو ہوتی ہے نا، تو لوگوں کے اندر یہ معاملات اس نہج پہ نہیں جانے چاہیے۔ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم پہلے بھی ادھر ہیں، آگے بھی ادھر ہی رہیں گے، ادھر ہی سارا کچھ ہم نے کرنا ہے اور صحافت بھی ادھر ہی کریں گے، لیکن لوگوں کے اندر ایک جو ہے وہ ایک نا امیدی سی مطلب میں نے دیکھی ہے۔ تو بہرحال اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، معاملات سارے جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ٹریک پہ ہے، اور طرح ہی رپورٹنگ اور سارے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایک جانب وہ فیک نیوز کی بات کرتی ہے اور دوسری جانب جو فیک مقدمات ہیں اس کے اوپر وہ پوری تواتر کے ساتھ عمل کرتی جا رہی ہے۔ فیک مقدمات تو میرا خیال ہے بات وہی ہے کہ جب جس قسم کے مقدمات آپ جب بناتے ہیں تو ان میں اور درجنوں کے حساب سے بناتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا لسٹ کے جو عمران خان صاحب ہیں ان کے سپٹمبر میں 42 مقدمات تھے، سپٹمبر 2024 تک، اور یہ آپ ذہن میں رہے کہ وہ 5 اگست 2023 سے جیل میں۔ اس کے بعد اکتوبر میں ان مقدمات کی تعداد ہو جاتی ہے 62، اور نومبر دسمبر میں ابھی جو تعداد آئی ہے وہ ہو گئی ہے 74۔ میں صرف فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، تو یہاں پہ 74 مقدمات ہیں، اور جو پنجاب ہے وہاں کے مقدمات کی جو تعداد میں نے آج دیکھی ہے وہ 99 ہے۔ 99 ایک رہ گیا سینچری کو، تو یہ آپ اندازہ لگا لیں۔ اور اس میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو بتاؤں کہ 2 خیبر پختونخوا میں کیسز ہیں، 7 ایف آئی اے کے ہیں، 3 نیب کے کیسز ہیں، تو ٹوٹل یہ تقریباً 186 187 جو وہ کیسز بنتے ہیں۔ تو یہ کیسز تو چلے بن ہی رہے ہیں یا جیسے بھی ختم ہوں گے، لیکن جو فیک نیوز اور مس انفارمیشن کے حوالے سے حکومتی قانون سازی کی آپ نے بات کی، میرا خیال ہے ہم میں سے میرے سمیت کوئی بھی فیک نیوز کو نہ سپورٹ کرتا ہے اور نہ یہ چاہتا ہے کہ فیک نیوز پھیلے، نہ ہی مس انفارمیشن یا اس قسم کی جو انفارمیشن کی جو پورا ہیجان جو ہے برپا کرتی ہے کہ اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا اور نہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب جو مس انفارمیشن جاتی ہے پبلک میں اور لوگ اس پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا کوئی مطلب اتھینٹسٹی نہیں ہوتی۔ لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ایک جانب جو ہے وہ ایک فیک نیوز پھیلتی ہے کہ 500 ہلاکتیں ہو گئی، 300 ہو گئی، 280 ہو گئی، 260 ہو گئی، تو اب اس کا حل سب سے بہترین تو یہی ہے نا کہ اس کو جانچنے کے لیے جو
गवर्नमेंट है वो जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे एक्सेस दे, जो जर्नलिस्ट हैं जो जाना चाह रहे हैं, डाटा को देखना चाह रहे हैं, वो पिम्स हो, पॉलीक्लिनिक हो, तो वहाँ पे एक्सेस दें। तो अगर वहाँ की एक्सेस भी आप ब्लॉक कर देंगे, आप उन हॉस्पिटल्स को कहेंगे कि नहीं नहीं किसी को कोई डाटा नहीं देना, अनऑफिशियली, ऑफिशियली तो कोई नहीं कहेगा, और वो भी जो है वो छुपाना शुरू कर दे बातें, तो हम मतलब हम तो फिर भी बतौर जर्नलिस्ट वो बात नहीं करेंगे कि जो जब तक कि एक एक चीज अथेंटिक जो है सोर्सेज से कंफर्म ना हो जाए। कोई अगर एक डेड बॉडी भी है वो भी अगर कंफर्म नहीं होगी तो हम तो बात नहीं करेंगे जब तक कि कंफर्म ना हो। दुरुस्त। लेकिन दूसरी जानिब गवर्नमेंट भी अगर जो है वो उसको छुपाने और इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करेगी, तो फिर उससे मेरा ख्याल में आप वो फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इसको आपने काउंटर करना है, लेजिस्लेशन करें या जो भी है, लेकिन आप दूसरी जानिब कम से कम वो इंफॉर्मेशन का फ्लो तो ना रोकें ना। अगर आप रोकेंगे तो फिर तो मामला फिर इसी बिल्कुल। तरह मतलब इसी लाइन पे जाएंगे ना। दुरुस्त। फिर एक और चीज देखी है हमने कि इस किस्म की जब वो लेजिस्लेशन करते हैं तो उसको हमेशा मिसयूज किया जाता है। अभी भी रिसेंटली भी हमने देखा मिसयूज किया जाता है। मिसयूज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मतीउल्लाह जान एक सीनियर सहाफ़ी हैं, जिन्होंने मतलब जिस पे मंशियात का और आइस का आपने मुकदमा डाल दिया, तो वो भी तो एक इख्तियार ही है ना, पुलिस के पास एक इख्तियार है ना, लॉ में, कि आप अगर कोई बंदा जुर्म करे तो उस पे आप कोई मुकदमा बना दें। आपने मिसयूज किया ना उस कानून को, किसके लिए? कि वो बंदा एक क्रिटिकल है, जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो बात कर रहा है या खबर ला रहा है, तो वो गवर्नमेंट को जो है वो सूट नहीं करती या वो उससे नाखुश है, तो उसके खिलाफ जी केस बना दें। तो इसी तरह अगर आप पीका लॉज में भी लेजिस्लेशन करें, किसी को कोई मसला नहीं फेक न्यूज से, बिल्कुल फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए माशरे में, लेकिन इन इस किस्म के लॉज को फिर मिसयूज भी नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी इतना ही जो है वो उस पर क्वेश्चन होना चाहिए फेक न्यूज फैलाने के हवाले से, जितना आप आम बंदे मुझसे या किसी और से तवक्को कर रहे हैं कि ये फेक न्यूज फैलाएगा जिसके खिलाफ एक्शन होगा। तो गवर्नमेंट को भी फिर जो है वो उसको जवाब देना होगा कि आपने अगर कोई मिसयूज अगर फेक न्यूज फैला रहे हैं या इंफॉर्मेशन का फ्लो रोक रहे हैं और फेक न्यूज फैल रही है, तो फिर उसके जिम्मेदार आप भी हैं। बिल्कुल। तो ये तदबार जो है वो दोनों हाथों से बजेगी। इस तरह मेरे ख्याल में, इस तरह जिस तरह गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपनी मर्जी से सारा कुछ करते रहे और बाकी कुछ भी ना हो, इस तरह भी नहीं होता। साकिब भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अभी आपने बताया कि आपके दोस्तों ने आपको क्या मशवरे दिए इस पूरे इंसिडेंट के बाद, और आपने इख्तियार की भी बात की कि पुलिस कोई भी आप पे मुकदमा बना दे, वो कितना ही रिडिकुलस क्यों ना हो, लोग उस पे पूरा पाकिस्तान उठ खड़ा हो कि ये क्या मुकदमा बनाए, क्योंकि हमने अब माजी में बहन चोरी के मुकदमात और इस तरह के जो मुज़िका खेज किस्म के मुकदमात हैं वो देखे हैं, क्योंकि जब इख्तियार इस तरह से मिल जाता है, आपकी जो फैमिली है उसके पास यकीनन जब ये न्यूज़ पहुंची होगी, जब उनका आपसे राब्ता नहीं हो रहा होगा, उनके ऊपर एक बहुत हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितने कर्ब में होंगे, कितनी बेचैनी होगी। तो आपका तो आप तो माशाल्लाह से अल्लाह ने आपको इतनी हिम्मत दी है, बहादुरी दी है, आप कहते हैं ये सिलसिला तो रुकेगा नहीं, ये सिलसिला तो हमेशा जारी रहेगा, करनी है सहाफ़त, इसी मुल्क में रह के करनी है। तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन होता है इस पे? नहीं वो तो जो मतलब एक फितरत है, वो जिस तरह का रिएक्शन हर फैमिली का होता है उसी तरह का ही होता है। वो मतलब उससे हटकर तो नहीं है, वो असर तो मतलब कम हो ज्यादा हो वो तो मतलब होता ही है। लेकिन दूसरा ये है कि फिर वो क्योंकि ये खबर जब आई तो बंदा मौजूद हो, तो फिर मेरे ख्याल में उसका फिर बहुत उस लेवल का जो असर है वो नहीं होता। लेकिन अल्टीमेटली बात जो मैंने आपसे की है वो उसका क्रक्स मैंने आपके सामने रखा है कि लोग सोचते क्या है, क्या सोचते हैं, क्या सोच है लोगों की हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं। और ख़ास तौर पर एक बात मैं ज़रूर करूँगा कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अरशद शरीफ भी एक साफ़ी थे और वो चले गए इस दुनिया से ना। तो इसलिए जो है वो आप भी उतनी हिफाज़त करें जितनी जो है वो कर सकते हैं। ये मैं अपने दोस्तों की बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं कि किसी ने थ्रेट के तौर पर बात की हो, लेकिन यह है कि लोगों के अंदर एक ना वो एक सोच होती है ना, तो उस सोच की बात है कि ठीक है यार छोड़ें, क्या सहाफ़त इधर होनी है और क्या नहीं होनी है, आप जाएँ और अपने काम शाम करें, तो मामलात इसी तरह जो है वो चलाते रहें।
सही यकीनन हम आपके लिए दुआ गो भी हैं, और जिस इस्तकामत के साथ नीलम पाकिस्तान में मौजूद जर्नलिस्ट करते हैं, ये कोई पहला दौर नहीं, हमने देखा मुख्तलिफ अदवार में बहरहाल जो सहाफ़त कर रहा होता है उसको इसी तरह के निशाना बनना पड़ता है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अच्छा साकिब साहब, मुकदमात की बात हो रही थी, उस हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ, आज ही जैसे GHQ हमला केस है, उसमें वो जो चल रहा है मुकदमा, उसमें फ़र्द जुर्म आज आयद की गई है, उसमें इमरान खान साहब भी हैं, दीगर कुछ अफराद भी हैं, और गालबन कोई साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है जब फ़र्द जुर्म ये आयद की गई इस मामले में। तो ये इतना वक्त क्यों लिया गया, वो मुकदमा क्या है, उस हवाले से भी थोड़ा सा बैकग्राउंड, बल्कि हम जानते हैं जिस तरह से 9 मई और वो तमाम, लेकिन ये इतना जो डिले लिया गया फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से, इसका क्या असर पड़ेगा इस पूरे मुकदमे पे? एक तो ये केस आप ये समझें कि तकरीबन 18-19 माह के बाद इसमें चार्ज फ्रेम हुआ है। तो किसी भी केस में जो चार्ज फ्रेम होना होता है वो ट्रायल का आप ये समझे कि पहला दिन होता है, उसके बाद उसका केस का ट्रायल आगे जो है बढ़ता है। तो ये केस 13 केसेस रावलपिंडी के 9 मई के केसेस जो बनाए गए थे, जिनमें प्रोसिक्यूशन का फोकस ये है कि एक केस को कम से कम वो जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। एक इसमें 119 मुल्ज़मान है। इमरान खान साहब जो है वो उन समेत उनकी जो पार्टी की उस वक्त की जो लीडरशिप है 2023 9 मई 2023, मतलब फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी, शाह महमूद कुरैशी, ये सारे जरताज गुल, असद कैसर, उमर अयूब, ये सारे जो है वो उसमें शामिल हैं। तो इस केस को वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें मजमूई तौर पर 119 मुल्ज़मान है, और आज का दिन थोड़ा सा गैर मामूली था अडियाला जेल में, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन 80 से ज़ायद लोग मौजूद थे। शेख रशीद साहब मौजूद थे। जो PTI की लीडरशिप है उनकी 9 मई के बाद बहुत सौ की, मतलब फवाद चौधरी इलेक्शन से पहले मिले थे, शेख रशीद इलेक्शन से पहले मिले थे उनको अडियाला जेल में, यही किसी केस के दौरान। इसी तरह एक दो और होंगे। इसके अलावा तकरीबन ऑलमोस्ट 98-90%, 99% PTI के कारकुनान और लीडरशिप वो लोग थे जो इमरान खान साहब को 5 अगस्त 2023 के बाद फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा, और इमरान खान साहब उनसे मुखातिब हुए जो कारकुनान है। और मेरी इतला के मुताबिक वहाँ हल्का फुल्का कोई जज्बात में आकर कोई नारा भी लग गया या इस तरह की बात हो गई। तो वो अब पता नहीं उस वक्त कोर्ट थी या नहीं, क्योंकि आज मीडिया को एक्सेस नहीं दी गई थी। तो मुख्तलिफ सोर्सेज से हमने चेक किया, और उसके बाद इमरान खान साहब की फवाद चौधरी से बात हुई, और वो भी बड़ी पॉजिटिव वे में सुना है बात हुई है, और शेख रशीद अहमद साहब से बात हुई, वो भी बड़ी पॉजिटिव वे में बात हुई है, और जो कारकुनान थे उनके साथ भी वो मुखातिब हुए। और वो मुझे वैसे भी मुख्तलिफ सोर्सेज से मैंने चेक किया कि क्या उन्होंने बात की, तो मैं कुछ सुन रहा था अभी, जो PTI के जो कारकुनान वो इस 9 मई के केसेस में मुलज़म भी हैं और वो वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने भी बताया। उसमें लुबे लबाब यही था कि वो उससे बात कर रहे थे कि आप जो है वो जो है वो मेरी टीम के खिलाड़ी हैं, और आखिरी गेंद तक जो है वो आपका कप्तान जो है वो खड़ा रहेगा, और इस तरह की बात, जिस तरह वो रूटीन में बात करते थे बाहर भी। तो वहाँ पे ये बात भी हुई। और उसके अलावा फिर जो तकरीबन 100 लोग जो हैं उन पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। 10 दिसंबर को इसमें गवाह तलब किए गए हैं प्रोसिक्यूशन के। एक केस इसमें दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की कि इस GHQ हमला केस में जो दहशतगर्दी की दफात लगी हैं ये दुरुस्त नहीं है। इस पर अदालत ने ये फैसला दिया है कि नहीं, ये दुरुस्त लगी हैं, और प्रोसिक्यूशन ने ये कहा था कि GHQ पे हमला करना ये दहशतगर्दी है, और दहशतगर्दी की दफात रहनी चाहिए। इस जो फर्द जुर्म आयद हुई है इसमें एक दो सुकम है। अब हाई कोर्ट में वो चैलेंज करेंगे वकला उनके, तो वो शायद सामने आए, क्योंकि किसी भी जो चार्ज फ्रेम होने के लिए तमाम मुल्ज़मान का होना ज़रूरी होता है, तो इसमें मुल्ज़मान सारे मौजूद नहीं थे। एक ये फैक्टर है, और दूसरा कि इसमें दहशतगर्दी की दफात रहेगी या नहीं रहेगी, फिर ये हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, तो हाई कोर्ट फिर इसको देखेगी। लेकिन एक चीज़ है कि 10 दिसंबर से जब ये ट्रायल शुरू होगा, तो इस केस में क्योंकि 100+ लोग हैं, और उसमें वकील भी अगर अंदाजा लगाएं तो कम से कम भी अगर 8, 2, 3, 4 लोगों के एक वकील हो, तो फिर भी 35-40 वकील बन जाते हैं। तो 150 अगर लोग होंगे एक कमरा अदालत में, तो वो तो एक पूरा मजमा लगा करेगा, और उसमें फिर तो ये जो सारे वो तो कहेंगे कि ये अच्छी बात है, हमारी मुलाकात हो रही है इमरान खान से, और इमरान खान उनसे मिल रहे हैं, और एक
अजीब सा वहाँ पे कोर्ट में अजीब मंजर भी होगा, कोर्ट कैसे उसको हैंडल करेगी, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रायल तमाम मुल्ज़मान की मौजूदगी जो है वो ज़रूरी होती है। तो अब ये देखना है कि ट्रायल डे टू डे चलेगा या कितना टाइम चलेगा और क्या अदालत इस पे फैसला कब तक कर सकती है। लेकिन प्रोसिक्यूशन की ये कोशिश है कि इस केस को जल्दी जो है वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। सही। अच्छा, आपने बताया कि फ़र्द जुर्म अब आयद हो चुकी है, तो ये इमरान खान साहब उस वक्त मौजूद नहीं थे जाए वक़ूआ, जो कि क्राइम सीन की जो लैंग्वेज होती है, वो तो उस वक्त जेल में थे, तो उनके लिहाज से ये केस, और बहुत सारे और लोग भी उस वक्त मौजूद नहीं थे वहाँ पर, और उमर अयूब साहब उनको गिरफ्तार किया गया है। उमर अयूब साहब को ही एक टास्क दिया गया था एक बार फिर से मुज़ाकरात का। तो अब किस तरह से मुज़ाकरात होंगे, और एक वो जो आखिरी कार्ड है इमरान खान साहब ने खेलना, जिसकी अलीमा खान बात कर रही हैं, उस हवाले से कुछ आप लोगों को पता चला कि अब कोई वाकई कोई कार्ड रह गया है इमरान खान साहब के पास? 3 सवाल हैं आपके। पहला तो ये है कि वो जाए वक़ूआ पे नहीं थे, तो उन पर इल्ज़ाम क्या है? उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने साज़िश की है और 9 मई से पहले ये साज़िश तैयार की गई। ये प्रोसिक्यूशन का इल्ज़ाम मैं अब बता रहा हूँ आपको। वो मोटरवे सर्विस एरिया चकरी रोड पर एक मीटिंग हुई। प्रोसिक्यूशन कहती है कि उस मीटिंग में ये तय हुआ कि इमरान खान साहब अगर गिरफ्तार होते हैं तो जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उन पर हमला किया जाएगा। ये इल्ज़ाम है प्रोसिक्यूशन का। इसी इल्ज़ाम में, साजिश में इमरान खान साहब और पीटीआई की बाकी लीडरशिप को रखा गया है। वो क्योंकि स्पॉट पे मौजूद तो नहीं थे। दूसरी बात जो आपने की कि उमर अयूब वगैरह गिरफ्तार हुए, वो भी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अभी तक की इतला के मुताबिक उनको रिहा नहीं किया गया और एटीसी कोर्ट ने उनको तौहीन अदालत भी किया। वो बाहर निकल रहे थे अडियाला जेल से, और उमर अयूब जो है उनकी पेशावर हाई कोर्ट से जमानत भी है कि उनको किसी और केस में गिरफ्तार ना किया जाए, इसके बावजूद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो वो एक अलग मामला जो खुलेगा। तीसरी बात कि ट्रम्प कार्ड, वैसे मुझसे किसी ने पूछा कि इमरान खान साहब के पास ट्रम्प कार्ड क्या है, तो मैंने ये कहा कि ट्रम्प कार्ड तो नहीं, लेकिन ट्रम्प जो बच्चे हैं सदर ट्रम्प, वही अब जो है वो कुछ कर ले। लेकिन जो ट्रम्प कार्ड लग रहा है वो उनके पास यही है कि वो 12 या 13 तारीख को पेशावर में कोई जलसा करने जा रहे हैं कि वो जो उनके लोग इसमें हलाकतें हुई हैं उनके हवाले से, तो उसमें कोई लग रहा है कि वो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे, और इस तरह करके कोई बात जो मुझे पता चली है कि जो वो मतलब शायद इस किस्म के मामलात उस तरफ लेकर जा रहे हैं। 2014 में भी आपने सुना होगा कि 2014 में भी उन्होंने बिल जला दिए थे और उसमें सिविल नाफरमानी की तहरीक और इस तरह के टूल जो है वो इस्तेमाल करते रहे। वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके थे उस वक़्त। अब जो है वो ये करने जा रहे हैं, इस पे बात होगी आइंदा आने वाले दिनों में, क्या उनको करना भी चाहिए या नहीं, पाकिस्तान के जिस तरह हालात हैं, और क्या वो कामयाब हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, उसका कितना असर होगा। फिर एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम, बैरिस्टर गौहर ने थोड़ी देर पहले कैपिटल टॉक में की आज। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर जो मुज़ाकरात कर रहे थे, उन मुज़ाकरात में ये था कि हुकूमत 2-3 हफ्तों में इमरान खान की रिहाई के हवाले से कुछ कर सकती है, लेकिन आप मतलब वक्ती तौर पर जो धरना है, ये जलसा है, वो किसी जगह और कर लें। लेकिन इमरान खान साहब फौरी रिहाई चाह रहे थे, तो इसलिए जो डील है या ये जो बातचीत है वो आगे नहीं बढ़ सकी। तो ये अलग से एक बहुत बड़ी बात है कि क्या मतलब जो बैकडोर राब्ते थे उसमें गवर्नमेंट एग्री हो गई थी कि 2-3 हफ्तों में वो रिहा कर देंगे, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे थे जल्दी करना है। तो ये एक अलग से एक बड़ी खबर आई है। यकीनन। अच्छा, बिल्कुल आखिर में अगर ये जैसे ये बातें उससे कबल भी आ रही थी, ये मुमकिन कैसे होगा अगर कोई ऐसी बात और मुस्तकबिल में भी होती है, चूँकि मुकदमात हैं, आपने खुद बताया कि पंजाब में 99 है, किसी भी वक्त वो 100 हो जाएंगे, उसके अलावा मजमूई तौर पे कोई 150 से ज़ायद मुकदमात ये बन जाते हैं। तो कैसे मुमकिन होगा इतने मुकदमात होते हुए कि अगर डील हो भी जाती है तो एक क्लीन चिट किस तरह से दी जाएगी? क्लीन चिट इस तरह से दी जाएगी कि वो क्या कहते हैं कि वो मक्खन में से बाल निकालना कि पता भी नहीं चलता। वो मियाँ साहब के खिलाफ केस बनाने में 5 साल लगे थे। हम्म। मतलब बहुत टाइम लग गया था। 2017 से मामला शुरू हुए थे, 2020-21 तक गए थे। तो उनसे उनके केस खत्म करने में 5 मिनट तो मैं नहीं कहता, लेकिन वही कोई 25-30 मिनट या 50 मिनट लग गए होंगे। तो 5 साल कहाँ, तो 50 मिनट कहाँ, और मियाँ साहब
وہ ادھر سے لندن سے جناب جو وہاں پہ ہائی کمشنر تھے وہ پروٹوکول کے ساتھ ملے، پھر یہاں پہ اترے، پھر ان کی جو بایو میٹرک ہوئی وہ کس طرح ہوئی، پھر وہ ہائی کورٹ میں آئے تو ساری پراسیکیوشن سارے پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یہ کیس تو بنتا ہی نہیں تھا، پرانی پراسیکیوشن نے غلط کیس بنائے، ہم واپس لے رہے ہیں. تو وہ ہمیں جناب 50 منٹ میں وہ کیس ختم ہوتے نظر آئے جو 5 میں بنائے. تو اس لیے جس رفتار سے یہ کیس بنائے جاتے ہیں نا، اس کے 100 یا 1000 مطلب زیادہ جو ہے ٹائم تیزی سے وہ کیس ختم ہونے کے راستے جو ہے موجود ہوتے ہیں. صحیح. چلیں یہ 186 187 مقدمات جو ہیں یہ پلک جھپکنے میں ہی ایسا لگے گا کہ ختم ہو جائیں گے. اسی وجہ سے نظام پر اب کسی کا اعتماد نہیں رہا، جو کہ بہت ہی انفارچونیٹ صورتحال ہے. آپ نے ہمیں وقت دیا، وہ بھی رات کے اس پہر، سارا دن آپ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. بہت ساری آپ کے ساتھ دعائیں. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا.